Hi all, so welcome to the second caselet on points distribution, maximization, and minimization in games and tournaments. And this would be a continuation of the other caselet that we did in in games and tournaments on points distribution, maximization, minimization. ठीक है? So let's read through this question once. Let's read through the caselet once and try to see what is the difference in this caselet with respect to the other caselet, right? So it says that Cricket World Cup of 2060 happened in Afghanistan where 12 teams took part. The teams were divided into two pools, Pool A and Pool B. So 12 teams divided into two pools. Each team in a pool was to play every other team in that pool. Top three teams from each pool would advance to the next stage called as the Super Six stage, and they would carry forward all the points they scored in the matches against the other two teams which advanced to the Super Six stage from its pool. ठीक है, तो we'll just pause here, we'll try to digest what is given. So in total you have 12 teams, they are divided into two pools, Pool A and Pool B. Pool A has six teams, Pool B has six teams, right? Let's say Pool A has teams like T1, T2, T3, T4, T5, and T6, right? And Pool B has teams like X1, X2, X3, X4, X5, and X6. Now, what is happening is top three teams from each pool would advance to the next stage called as the Super Six stage. So, this is the situation with the first round or the pool stage. Then you have the Super Six stage coming in. And what is happening in Super Six stage? Top three teams from like each pool. So, top three teams like from each pool, like from pool A, let's say T1, T2, T3, and from pool B, let's say X1, X2, X3, they qualify and they move on to the next stage, which is the Super Six stage. But additionally, what is being written here? They would carry, these top three teams would carry forward all the points they scored in matches against the other two teams which advanced to the Super Six stage from its pool. मतलब यदि T1, T2, T3 यदि एडवांस करता है सुपर सिक्स स्टेज में अपने पूल से, तो T1 कैरी फॉरवर्ड कुछ पॉइंट्स करेगा। वो कौन से पॉइंट्स कैरी फॉरवर्ड करेगा? T1 कैरी फॉरवर्ड करेगा वो पॉइंट्स जो उसने गैदर किया इन द मैचेस बिटवीन T2 एंड T3, या फिर T2 कैरी फॉरवर्ड करेगा वो पॉइंट्स जो उसने गैदर किया इन द मैचेस विथ T1 एंड T2, या T3 कैरी फॉरवर्ड करेगा वो पॉइंट्स जो उसने गैदर किया इन द मैचेस बिटवीन T3 T1 and T3 T2. ठीक है, let's read through this sentence once more. So they move on to the next stage, which is called as the Super Six stage, and they would carry forward all the points they scored in matches against the other two teams, which advanced to the Super Six stage from its pool, right? So that's what we just discussed. ठीक है? A team fetches 2 points upon a win, 1 point upon a draw, and 0 points upon a loss in a pool stage or in a super six stage. तो points का distribution क्या है? Win, draw और loss पर +2, +1 और 0। ठीक है, और मैच के आउटकम्स क्या हो सकते हैं? मैच के आउटकम्स हो सकते हैं विन लॉस या फिर ड्रॉ ड्रॉ। विन लॉस के केस में 2-0 के टाइप से पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ड्रॉ ड्रॉ के केस में 1-1 के टाइप से पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंड इन बोथ दीज केसेस इफ यू सी in a match how many points are getting distributed in total? 2 points here and 2 points in this outcome also. Okay, so in a match always 2 points are getting distributed. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा पूल स्टेज, हमने देखा सुपर सिक्स स्टेज। ठीक है, a team fetches okay, so we looked at this line. Now in the super six stage, all the teams that advance from pool A are to be in group 1, and all the teams that advance from pool B are to be in group 2. Each team in group 1 plays against every team in group 2. So let's say पूल ए से जो भी हमारे टीम्स एडवांस हुए उनको हम डाल देते हैं ग्रुप 1 में, और पूल बी से जो हमारे टीम्स एडवांस होंगे उनको हम डाल देते हैं ग्रुप 2 में। सपोज करो x1 x2 और x3 आ रहे हैं हमारे पास ग्रुप 2 में। ठीक है, सो now what is happening? How is the matches getting scheduled? Each team in group 1 is playing one match against every team in group 2. मतलब T1 plays a match against X1, T1 plays a match against X2 and a match against X3. Similarly, T2 plays a match against X1, a match against X2 and a match against X3. Same goes for T3 also. ठीक है? So that's how the Super 6 stages getting is getting framed, and points distribution यहाँ पर भी
same है as that of pool stage, which is +2, +1 and 0. Now let's see what is happening after that. Okay. So we looked at this. Each team in Group 1 plays against every team in Group 2. At the end of Super 6 stage, top two teams from each group advance to semifinals. Okay, so at the end of Super 6 stage, what is happening? From a group, the top two teams, let's say T1 and T2 are the top two teams, then they would advance, they would move on to the semi-final stage from like group 1. Similarly, from group 2, what will happen is the top two teams, let's say they are going to be x1 and x2 in this case, so they will move on to the semi-final stage. ठीक है, तो ग्रुप 1 से भी दो टीम निकली और ग्रुप 2 से भी दो टीम निकल के गई एडवांस की सेमीफाइनल्स में on the basis of the points scored by those teams. And when you say the points scored, कुछ इस पे further specify किया ना, top two teams from each group advance to the semifinals according to what? According to their total points, which is the carry forward points plus the super six points, right? Super six points to clear hai, the points which a team would have gathered in the super six matches. What is meant by this carry forward points? Carry forward points would mean this the statement here. It follows from this statement that teams moving over to the Super 6 stage, they would carry forward all the points they scored in matches against the other two teams which advanced to the Super 6 stage from its pool. मतलब T1 जो points gather किया था T2 या T3 के साथ वो carry forward point कहलाएगा और सेमीफाइनल में जाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा सुपर सिक्स से सेमीफाइनल में जाने के लिए आपको चाहिए होगा जो कैरी फॉरवर्ड पॉइंट्स हैं प्लस जो आपके सुपर सिक्स के पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे हमारा डिसीजन बनेगा कि कौन सी टीम जा रही है सेमीफाइनल में फ्रॉम द सुपर सिक्स स्टेज. ठीक है, top team in group 1 plays against the second team in group 2 and vice versa. So this is how the semi-final is happening. The winners of semi-finals advance to the finals. ठीक है, so you will have the semi-finals, then you'll have the finals. So semi-finals में हमारे पास दो मैचेस होंगे. ठीक है, फाइनल्स में हमारे पास एक मैच हो रहा है. ठीक है, if two or more teams end up with the same number of points at the end of or at the end of Super 6 stage, then tie is resolved using the preset rule. So we are not worried if there is a tie in at the end of a round because ties are getting resolved using preset rules. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में जो यदि हम पिछले वाले केसलेट से इसको कंपेयर करें तो हमारे पास चेंज कहाँ आ रहा है, हमारे पास चेंज बस ये वाला आ रहा है. ठीक है, जो कैरी फॉरवर्ड पॉइंट है और कैसे सुपर सिक्स से सेमीफाइनल में आप जा रहे हो कैरी फॉरवर्ड पॉइंट प्लस सुपर सिक्स के पॉइंट्स को लेके. ठीक है, तो यही एक जगह है जहां पर आप फंस सकते हो. अदरवाइज जो भी इसे क्वेश्चंस होंगे यू विल बी एबल टू सॉल्व इफ यू हैव वॉच द लाइक द लास्ट वीडियो. If you have not, then anyways we'll do it all over again. So don't like be worried. So if you're watching this video, the previous video will always get covered. ठीक है, so first question, let's go to the first question. What is the total number of matches that have been played? तो एक पूल में हमारे पास टोटली सिक्स टीम्स हैं. तो एक पूल में सिक्स टीम्स हैं तो 62 मैचेस होंगे. सिमिलरली हमारे पास वहाँ दो पूल्स हैं तो 62 into 2 मैचेस होंगे in the pool stage. Then in the super 6 stage, T1 is playing 3 matches, right? Likewise, T2 and T3, you have other two teams, so they'll play like 3 matches as well. So total number of matches in Super 6 would be 3 into 3. Now, how many matches in semifinals? 2 matches in semifinals. We have four teams in semifinals. Okay, and 2 matches. They have specified how the semifinal is happening. Okay, and then you'll have like one match in the final. So the sum total for this would give you the total number of matches, which would be equal to 30 plus 9 plus 2 plus 1, which is equal to 42 matches. So this should be the answer here. What is the total number of matches played? That should be 42. Okay. Next question. The number of points scored by a team which advanced to the Super 6 stage is at least. ठीक है, तो एडवांस करना है सुपर सिक्स स्टेज में फ्रॉम द पूल स्टेज. तो लेट्स से T1 T2 T3 T4. ठीक है, let's say T1, T2, T3, T4, T5 and T6. These are the six teams in pool A. और क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है points scored by a team which advanced to the super six stage. Let's say I have ranked them in the I have like written them in their rank in the order of the points scored and after making their ties.
ठीक है। तो कह रहा है नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड बाय अ टीम विच एडवांस्ड टू द सुपर सिक्स स्टेज, लेट्स से T1 T2 T3 एडवांस टू द सुपर सिक्स स्टेज। now the number of points scored by this team ranked 3 which is T3 which I have depicted as T3 here is at least, और या फिर आपको निकालना है T3 कितने मिनिमम पॉइंट्स को स्कोर करके सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है, T3 कितने मिनिमम पॉइंट्स को स्कोर करके सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकता है। तो यदि हमें T3 के पॉइंट्स को मिनिमाइज करना है तो पहले तो देख लो कितने टोटल पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे बिटवीन ऑल दी मैचेस दैट हैव बीन प्लेड इन पूल ए। तो टोटल मैचेस है हमारे पास 6C2 इन पूल ए। कैसे, 6 टीम्स है हमारे पास और 6 में से कोई भी 2 टीम को सिलेक्ट करोगे तो एक मैच, एक डिस्टिंक्ट मैच बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस वुड बी 6C2 एंड टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच मैच इज 2, so total number of points that will get distributed in all the matches in pool A would be 6C2 into 2, which should be equal to 30 points, right? This is the total number of points that is getting distributed, ठीक है। तब यदि इसको मिनिमाइज करना है तो हम कहेंगे भाई बचे सबको आप मैक्सिमाइज करो, बाकी बचे हुए सारे के पॉइंट्स को आप मैक्सिमाइज करो, ठीक है। लेकिन तो ये हमारा पहला है, ठीक है, पहला है कि यदि हमें इसको मिनिमाइज करना है तो किसको इसको मैक्सिमाइज करना है। और दूसरा क्या हमें ध्यान में रखना है कि T3 और T4 को यदि आप कंपेयर करोगे तो आप कहते हो कि ठीक है T3 को हमें मिनिमाइज करना है और T4 के पॉइंट्स को मैक्सिमाइज करना है। लेकिन एट एनी पॉइंट इन टाइम T4 का जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है वो T3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। अदरवाइज T4 को आपको ऊपर रखना चाहिए था, रैंक ऊपर करना चाहिए था टेबल में, राइट। तो T4 का पॉइंट कभी भी T3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। हालांकि T4 का पॉइंट T3 के बराबर हो सकता है। तो T4 का मैक्सिमम पॉइंट्स कितना अटेन कर सकता है, T3 के बराबर का मैक्सिमम पॉइंट्स अटेन कर सकता है, राइट। सिमिलरली T4 और T5 का भी पॉइंट्स, यदि आपको T5 का मैक्सिमाइज करना है पॉइंट को तो आप कहोगे कि T5 का मैक्सिमम पॉइंट कितना अटेन करेगा, T4 के बराबर वो अटेन कर सकता है, T4 से ज्यादा नहीं कर सकता है। या फिर T6 मैक्सिमम पॉइंट्स कितना अटेन करेगा, T6 मैक्सिमम T5 के बराबर अटेन करेगा, T5 से ज्यादा नहीं अटेन करेगा, राइट। तो हम कहेंगे यदि हमें मैक्सिमाइज करना है T4 को, T5 को, T6 को, ठीक है, और मिनिमाइज करना है T3 को सच दैट T3 is still ranked above T4, T5, T6 in the table, then we'll say that all of them end up getting equal points, ठीक है। So this is the second point. If you want to pause here, go back and like revisit this explanation, then do it in the video, okay? So this is the second point in case you want to solve a question like this. Now अब T1 को या फिर T2 के पॉइंट्स को मैं मैक्सिमाइज करना है तो T1 कितने मैचेस खेल रहा है, T1 खेल रहा है, सॉरी यहाँ पर T1 खेल रहा है टोटली हमारे पास यहाँ पर 6 टीम्स है। तो T1 विल प्ले 5 मैचेस और पॉइंट्स को मैक्सिमाइज करना है तो हम कहेंगे 5 मैचेस में 5 के 5 मैच वो जीत जाएगा, यानी 5 into 2 यानी 10 पॉइंट्स T1 गैदर करेगा। T2 भी 5 मैचेस खेलेगा लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ विंस T2 के लिए कितने होंगे, T2 के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ विंस 4 होंगे क्योंकि T1 ऑलरेडी एक विन रजिस्टर कर चुका है T2 वाले मैच में, ठीक है। तो T1 T2 के मैच में हमने कह दिया है कि T1 हैज वोन, सो T2 विल एंड अप विथ लेट्स से 4 विंस और अ टोटल ऑफ 8 पॉइंट्स। सो T1 के टोटल पॉइंट्स कितने हैं 10, T2 के टोटल पॉइंट्स कितने हो सकते हैं 8, यानी टोटली 18 पॉइंट्स हमारे T1 और T2 में निकल गए out of the total 30 points. So that means we are left out with 12 points in total. Now these 12 points should now be distributed among these four teams T3, T4, T5, T6, right? And they could be distributed equally so that you minimize T3 and maximize all of them, right? So 12 पॉइंट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे among these four teams, so each team will get like 3 points, each team will get like 3 point, and so T3, T4, T5 and T6 they all get like 3 points, and on the basis of tie breaking rules T3 is placed above T4, T4 placed above T5 and T5 placed above T6, and T3 with 3 points moves on or qualifies to the semifinals, ठीक है। So number of points scored by a team which advanced to the Super 6 stage is at least 3 points, ठीक है। तो मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए ही होगा किसी भी टीम को एडवांस करने के लिए सुपर सिक्स में, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट ऑन मिनिमाइजेशन, लेट्स मूव ऑन नाउ। The total number of points of a team that the total number of points और specify किया है क्या, carry forward plus super six, ठीक है, of a team that advanced to the semifinals is at least, ठीक है। तो pool stage हुआ आपके पास, उसके बाद सुपर सिक्स हो रहा है, ठीक है। और अज्यूम करो हम पूल स्टेज में बात करते हैं T1 T2 T3,
T4 T5 और T6 का, जिसमें से कि T1 T2 T3 क्वालिफाई कर रहा है सुपर सिक्स में। ठीक है। और ये प्ले करेगा अगेंस्ट X1 X2 और X3 कमिंग फ्रॉम द अदर पूल। ठीक है। तो मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, मैक्सिमाइज करना है। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ अ टीम दैट एडवांस टू सेमीफाइनल्स इज एट लीस्ट। ठीक है। अब सुपर सिक्स से सेमीफाइनल में दो टीम्स जाएंगी फ्रॉम पूल ए, राइट। तो मिनिमम पॉइंट्स कितना लेकर के जो भी हमारी सेकेंड टीम होगी रैंक्ड आफ्टर द सुपर सिक्स स्टेज, मिनिमम कितना पॉइंट लेकर के सेमीफाइनल्स में जा सकती है। ठीक है। मिनिमम कितना पॉइंट लेकर के सेमीफाइनल्स में जा सकती है। लेकिन ये मिनिमम पॉइंट्स जो होंगे T2 के, वो कहाँ से आएंगे? वो दो तरह से आएंगे। एक तो होंगे हमारे कैरी फॉरवर्ड पॉइंट्स, और दूसरा होगा हमारा सुपर सिक्स का पॉइंट। ठीक है। तो पहले हम सुपर सिक्स वाले पॉइंट्स को देखते हैं। ठीक है। अब क्या है कि पूल ए से T1 T2 T3 है, तीन टीम है। अब सपोज करो तीन के तीनों टीम अपने रेस्पेक्टिव तीनों मैचेस हार जाती है, राइट। तो भी क्या, तुमको रैंक तो करना ही पड़ेगा ना T1 T2 T3 को, राइट। रेस्पेक्टिव मैचेस हार जाती है यानी सारे तीनों के तीनों टीम्स आपके जीरो विंस रजिस्टर करते हैं, राइट। जीरो विंस मैं क्यों रजिस्टर करवा रहा हूँ? क्योंकि हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स मिनिमम निकालने हैं, राइट। तो जीरो विन रजिस्टर करने के बाद भी दो टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई हो रही है, तो सुपर सिक्स में यदि सपोज करो जो भी टीम यहाँ पर क्वालिफाई हो रही है विथ मिनिमम पॉइंट्स, यदि वो जीरो विंस या फिर जीरो पॉइंट्स रजिस्टर करती है तो वो आपका मिनिमम होगा। रही बात कैरी फॉरवर्ड वाले पॉइंट की, राइट। तो कैरी फॉरवर्ड पॉइंट्स कौन से हो रहे हैं? T1 के पॉइंट्स हो रहे हैं कौन से मैचेस के साथ? T2 और T3 के मैचेस के साथ। तो ये जो तीन टीम्स हैं, ये आपस में 3C2 मैचेस खेलेंगे और आपस में इन टोटल 3C2 into 2 पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी 6 पॉइंट्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे T1 T2 T3। ठीक है। T1 T2 और T3 आपस के जो मैचेस होंगे उसमें 6 पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये 6 पॉइंट्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं? हो सकता है कि T1 को मिले 4, T2 को मिले 2 और T3 को मिले 0 पॉइंट्स। हो सकता है दूसरे तरीके से कि 2 2 और 2 पॉइंट्स इस तरह से भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं T1 T2 T3 के बीच के मैचेस के, राइट। तो 6 पॉइंट्स को आपने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया in pool stage, right, in the pool stage this is case 1 and this is case 2, right। ठीक है। तो इन एनी केस हमारे पास सुपर सिक्स में तो 0 पॉइंट्स गैदर हो रहे हैं। और यदि आप देखो यहाँ तो T2 जो होगा, इट मूव्स ऑन और इट कैरीज फॉरवर्ड 2 पॉइंट्स in either case, right। It moves on with 2 points in either case and then attains like 0 points here and then attains like 0 points here. So this is coming from like case 1, this is coming from case 1 below and this is coming from case 2 below। ठीक है। and then it gathers 0 points in here. So total number of points with which it could move on to semifinals is 2, and same would be the case with T3 also। T3 के भी यदि आप लो सपोज करो यहाँ पर 2 पॉइंट्स लेते हो केस 2 वाले के हिसाब से, तो 0 पॉइंट्स सुपर सिक्स में ले रहे हैं मिल रहे हैं उसको, तो टोटल पॉइंट्स आपके 2 पॉइंट्स के साथ वो क्वालिफाई कर सकता है। या फिर इवन T4 के लिए केस 2 में यदि 2 पॉइंट्स ले रहे हो और T1 को आप 0 पॉइंट्स दे रहे हो तो भी वो 2 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई कर सकता है। And then tie breaking is accordingly applied, right, to rank the teams, right, to find out like the first, second or the third team। ठीक है। तो with a minimum of 2 points a team can move on to semi-finals from the super six stage from a pool, right। with a minimum of 2 points a team can move on to the semi-finals from the super six stage। ठीक है। तो फिर से देखते हैं कैरी फॉरवर्ड और सुपर सिक्स वाले स्टेज से आपके पास पॉइंट्स आएगा। ठीक है। पहला हमने कहा कि भाई सुपर सिक्स से मिनिमम पॉइंट्स हमें निकालना है एक टीम के लिए। ठीक है। आउट ऑफ T1 T2 T3, और दो टीम्स तो एनीवेज क्वालिफाई होंगे ही होंगे, तो इवन जीरो विंस या फिर 0 पॉइंट्स भी मिले सारे के सारे टीम्स को, तो भी दो टीम्स क्वालिफाई होंगी। तो सुपर सिक्स से मिनिमम पॉइंट्स कितने होंगे? 0। ठीक है। ये हमारा पहला क्लू है। ठीक है। दूसरा क्लू क्या है? कैरी फॉरवर्ड वाले पॉइंट्स। कैरी फॉरवर्ड कितने पॉइंट हो रहे हैं इन टोटल आउट ऑफ दिस T1 T2 T3? तो इन टोटल हमारे पास 3C2 into 2 यानी 6 पॉइंट्स कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। ठीक है। और ये 6 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो सकते हैं? 4 2 0 2 2 2, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं दो केस में, राइट। और यदि हम दोनों केस में जो हमारा
जो हमारा सेकंड टीम होगा वो क्वालिफाई करेगा सेमीफाइनल में। तो अज्यूम करो T2 है, तो T2 यदि 2 पॉइंट लेकर के आता है तो भी क्वालिफाई करेगा 2 पॉइंट्स के साथ, यदि केस टू में भी 2 पॉइंट लेके आता है तो भी क्वालिफाई करेगा 2 पॉइंट के साथ, राइट। या फिर T3 का केस टू लो, तो T3 भी होगा जो 2 पॉइंट्स के साथ आगे क्वालिफाई कर सकता है सेमीफाइनल्स में, क्योंकि 0 पॉइंट मिला है सुपर 6 में। या फिर T1 का भी केस टू लो, तो भी वो 2 पॉइंट्स और 0 पॉइंट के साथ कैरी फॉरवर्ड कर सकता है सेमीफाइनल्स में, ठीक है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज लाइक क्लियर टू यू, ठीक है। इफ यू हैव अ डाउट, प्लीज comment below. We will clarify your doubts, and if possible, if you want to like reach out to us personally, then you can email to us. We can like schedule a personal time with you, and we can clarify your doubt in such cases. Okay, so let's move on. So the next question is the maximum number of wins by a team that failed to advance to semi-finals, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ विंस हमें निकालना है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ विंस विल कॉरेस्पॉन्ड टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑल्सो। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछ सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स बाय अ टीम दैट फेल टू एडवांस टू द सेमीफाइनल्स, ठीक है। तो फेल टू एडवांस टू सेमीफाइनल्स हमें निकालना है, तो पूल स्टेज होगा हमारे पास, सुपर 6 होगा, और सेमीफाइनल्स है। अज्यूम करते हैं हम अपना सेम पैटर्न, T1 T2 T3 T4 T5 और T6, और सुपर 6 में सपोज करो T1 T2 और T3 जा रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ विंस निकालना है फॉर अ टीम विच फेल्ड टू क्वालिफाई टू सेमीफाइनल्स। सो लेट्स सपोज करो हम इस तरह का पैटर्न सिनारियो लेते हैं, T1 T2 T3 क्वालिफाई करता है सुपर 6 में, और उसके बाद फिर T1 और T2 हमारा सेमीफाइनल में क्वालिफाई करता है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ विंस यहाँ पर हमें निकालने हैं, किसके लिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ विंस हमें निकालने हैं या मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने हैं हमें T3 के लिए, ठीक है। ठीक है, तो T3 के पॉइंट्स हमें मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई बचे हुए सारे के पॉइंट्स आप मिनिमाइज करो, या T3 के मैचेस मैक्सिमाइज करना है तो पॉइंट्स लेके हम बना रहे हैं इसको, ठीक है। विल सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो T3 के पॉइंट्स हमें मैक्सिमाइज करना है, हम कहेंगे भाई इसको भी मिनिमाइज करो और ऊपर वाले सबको भी मिनिमाइज करो, ठीक है। लेकिन अब क्या है, T2 का पॉइंट T3 के बराबर हो नहीं सकता है, दैट वाज द फर्स्ट क्लू, ठीक है। किसको इसको मिनिमाइज करना है, किसको मैक्सिमाइज करना है। तो अब सेकंड क्लू क्या है, T2 का पॉइंट कभी T3 के बराबर, T3 से कम तो नहीं हो सकता है, लेकिन इक्वल हो सकता है ना। तो हम कहेंगे सिमिलरली T2 का T3 के इक्वल हो सकता है, और T1 का भी पॉइंट कभी T2 से कम नहीं हो सकता है, लेकिन बराबर हो सकता है, ठीक है। और टोटल मैचेस यहाँ पर 6C2 होंगे इस पर्टिकुलर पूल में, और पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे टोटली 6C2 × 2 यानी 30 पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। और ये 30 पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो ये हमारा सेकंड क्लू हो गया। और यदि बात करें हम ये T4 T5 और T6 वाले मैचेस का, तो टोटली यहाँ पर तीन टीम्स हैं, 3C2 मैचेस होंगे, और ये आपस के 3C2 × 2 यानी 6 पॉइंट वो आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। तो दिस इज द थर्ड क्लू फॉर सॉल्विंग अ क्वेश्चन लाइक दिस, ठीक है। यू शुड अराइव एट दिस ऑल्सो। तो टोटली यदि आप देखो तो 30 पॉइंट्स में से हम कहेंगे भाई ये जो टीम्स आपस में खेल रहे हैं, नीचे वाले जो टीम्स हैं, उनके पॉइंट्स आप ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, इसलिए पहले तो उसको सब्ट्रैक्ट करो। तो टोटली आपके पास 30 - 6 यानी 24 पॉइंट्स बचेंगे, विच कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन T1 T2 T3। क्यों? क्योंकि T1 T2 T3 के बीच में मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो T4 T5 T6 को मैं मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दूंगा। और T4 T5 T6 का जब हमें मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स देना है, तो हम कहेंगे भाई T4 T5 T6 के जो आपस के मैचेस होंगे वो तो पॉइंट्स जो होंगे वो उनके बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे, लेकिन अदरवाइज जो भी मैच T1 T2 T3 का हो रहा है बिटवीन बिटवीन T4 T5 T6, उसके पॉइंट्स हम कहेंगे सारे के सारे ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं, T1 T2 T3 में ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमने कहा कि T4 T5 T6 के जो आपस के मैचेस हो रहे हैं उनके पॉइंट्स आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उनके पॉइंट्स को हम ऊपर ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने कहा 3C2 मैचेस हो रहे हैं इन तीन टीम्स के बीच में, इंटू 2 यानी टोटली 6 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ठीक है। आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 36 पॉइंट्स विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड हियर, दैट मीन्स वी आर लेफ्ट विथ 24 पॉइंट्स, which should now be distributed between how many teams? Between these top three teams, right? So each team would end up with 8 points. Each team would end up with 8 points. So T1 को मिला यहाँ 8 पॉइंट, ठीक है। T1 को मिला यहाँ 8 पॉइंट, T2 को भी मिला यहाँ 8 पॉइंट, T3 को भी मिल गया सपोज करो 8 पॉइंट, ठीक है। तो सुपर 6 में अब हमारे पास टीम्स आ रही हैं,
ठीक है। और सुपर सिक्स में हमें क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ विंस निकालना है ना। तो हम कहेंगे भाई इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ विंस कितना है, इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ विंस कितना है, इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ विंस कितना है। हम कहेंगे भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ विंस कितना हो सकता है T1 का, 3 विन हो सकता है, क्योंकि T1 प्ले करेगा अगेंस्ट द टीम्स फ्रॉम द अदर पूल विच वुड बी X1 X2 X3, जस्ट लाइक टू आर्बिट्ररी एग्जांपल। अब मैक्सिमम विन इसका भी 3 हो सकता है, मैक्सिमम विन इसका भी 3 हो सकता है, T2 का भी और T3 का भी मैक्सिमम नंबर ऑफ विंस 3 हो सकता है, राइट। तो क्या हुआ कि 8 पॉइंट्स के साथ यहाँ आया, और उसके बाद तीन 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 तीनों अपना, तीन के तीनों मैचेस जीत गया, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ लाइक विंस या फिर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना होगा, यदि 3 मैचेस जीत रहा है सारे के सारे, तो ये सारे के सारे 6 पॉइंट्स आपके एग्रीगेट करेंगे, राइट। 6 पॉइंट्स हियर, 6 पॉइंट्स हियर एंड देन 6 पॉइंट्स हियर, दे आर एग्रीगेटिंग इन द सुपर सिक्स। एंड देन इन द पूल स्टेज दे ऑल एग्रीगेटेड लाइक 8 पॉइंट्स, सो इन टोटल दे एग्रीगेटेड लाइक 8 पॉइंट्स प्लस 6 पॉइंट्स, or in total they combining like pool stage and the super six stage, they aggregated 8 points and 6 points. Otherwise they aggregated, you will say, like 4 wins and 3 wins, 4 wins in the pool stage and 3 wins. This 8 point will correspond to 4 wins, right? And then 6 points will correspond to 3 wins, so 3 wins in the super six stage, right? So in total, like with 7 wins, a team could still get eliminated because all three are registering like 7 wins. So, and then they're getting ranked on the basis of breaking rules. So with 7 wins, right? With 7 wins, T3 can still get eliminated from the Super 6 stage, right? So 7 wins T1 will have in total, 7 wins T2 will have in total till the end of Super 6 stage, and 7 wins T3 will also have in the end of Super 6 stage, and then T3 gets eliminated. So what is the maximum number of wins by a team that failed to advance to the semi-finals? So maximum number of wins would be 7, ठीक है। अब पॉइंट्स का यदि क्वेश्चन आता है तो आप अकॉर्डिंगली उसको आंसर करना कि पॉइंट्स आपका क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन पूल प्लस टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सुपर सिक्स, या फिर पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ कैरी फॉरवर्ड पॉइंट्स इन पूल प्लस टोटल नंबर ऑफ कैरी फॉरवर्ड पॉइंट्स इन सुपर सिक्स स्टेज, ठीक है। तो ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। इसके जो लास्ट 2 क्वेश्चंस थे, ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ विंस वाला क्वेश्चन है, या फिर इससे पहले का जो क्वेश्चन था टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, कैरी फॉरवर्ड पॉइंट्स जो है, ठीक है, ये दोनों इसका नया क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था आई वुड से, ठीक है। दिस वुड फॉल इन द एवरेज और एवरेज डिफिकल्टी लेवल, राइट। इसके अलावा जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस थे वो तो आसान थे, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन तो आप एनी गिवन डे लाइक यू कैन सॉल्व इफ यू हैव द बेसिक्स। सेकंड क्वेश्चन आल्सो यू कैन सॉल्व इफ यू हैव द बेसिक्स, राइट। इसमें एक और नया क्वेश्चन क्या ऐड कर सकते हैं, नया क्वेश्चन हम ऐड कर सकते हैं वो वाला जिसमें हमने कहा था कि number of points scored by a team which advanced to the super six stage is at least that, till this point it's fine। अब इसके आगे एक कंडीशन डाल देगा, such that, कंडीशन डाल देगा, such that no two teams have same number of points, same number of points, right। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे आप। तो हमने कहा भाई मीन लेंगे, तो यहाँ पर देखो तो 4 इवन नंबर्स हैं, तो मीन तो हमारे पास ये दोनों नंबर का आएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई इसमें से -1 करो, इसमें +1 करो, यहाँ -2 करो, यहाँ +2 करो, और देखो आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे 5 4 2 और 1 पॉइंट, राइट। 5 4 2 और 1 पॉइंट, ऊपर के T1 और T2 को आपने कहा था 10 और 8 है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स विद विच अ टीम कैन एडवांस टू द सुपर सिक्स स्टेज, द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स विद विच अ टीम कैन एडवांस टू द सुपर सिक्स स्टेज, such that no two teams share the same number of points, so in that case it would be 5, right। So answer should be 5 in that case। तो यदि इस ये क्वेश्चन आता है जो अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया आपके साथ, और उसके साथ यदि क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4 आता है, तो मैं इस पूरे केसलेट को मतलब एवरेज से डिफिकल्ट लेवल में रखूंगा, ठीक है। हाउएवर यदि आप देखो तो आपको बनाने में, वंस यू हैव प्रैक्टिस थ्रू दीज काइंड ऑफ केसलेट्स, आपको बनाने में आई डोंट थिंक कि 6-7 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा टू सॉल्व लाइक ऑल दीज 4 क्वेश्चंस कंफर्टेबली। यू वुड बी एबल टू लाइक सॉल्व दीज 4 क्वेश्चंस इन लाइक 6-7 मिनट्स, ठीक है। देखो तो ज्यादा, वी डिड नॉट डू अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन और लॉट ऑफ लाइक स्क्रिबलिंग और लाइक राइटिंग, ठीक है। काफी हद तक मतलब लॉजिकल जाता है, थॉट
प्रोसेस पे जाता है। मिनिमम मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिनिमाइज करना है तो किसको आप मैक्सिमाइज करोगे, किसको आप इक्वेट करोगे। मैक्सिमाइज करना है तो आप किसको मैक्सिमाइज करोगे। मैक्सिमाइज का ये जो तीन केस हमने देखा यहाँ पर, ये जो मैक्सिमाइज का हमने तीन यहाँ पर हमने देखा, ठीक है, किसको आप मिनिमाइज कर रहे हो, कैसे पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है, नीचे वाली टीम के साथ कैसे हो रहा है। तो ये चीज़ें ही हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा, और यही चीज़ें हैं जहाँ सारे के सारे लोग स्ट्रगल करते हैं। ठीक है। यही ट्रिक्स हैं, यही शॉर्ट ट्रिक्स हैं आपके, जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो ऑल राइट, प्लीज डू पोस्ट योर कमेंट्स बिलो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हेल्प अस प्रमोट सच free videos, and help us reach out to the maximum people who are preparing for competitive exams. All right, thank you.